Lay down my Lord's lotus footstep. Sadgurudev ki jai. Very humble request to live on earth. In all the live on earth, when reading the truth from the holy scripture of the earth, if any one of the caste, classes, sect, religion, rulers, people, ghosts, devil, gods, angel, and other creature in the world, and all living being in the world, are hurt by the word of the truth, apologies to all from the heart. The purpose of the slave is not to hurt anyone. The truth is that the earth should know and accept the true God and accept the whole world in order to live in the true form. In I place of use, I must understand that God, the righteous spirit, सत्साहेब। हार्दिक नम्र निवेदन पृथ्वीवासीमा सम्पूर्ण पृथ्वीवासीमा पृथ्वीको पवित्र धर्मशास्त्रबाट वचन पाठ गर्दा कुनै देश जाति सम्प्रदाय धर्म शासक शासित तथा अन्य वर्गहरूमा तथा भूत प्रेत पिचास देवदेवी ईश्वर स्वर्गदूत तथा ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जीव यदि कसैलाई सत्य वचनले घात पुर्याउँछ भने यो दास हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छ। दासको उद्देश्य कसैलाई चोट नोक्सानी मानहानि पुर्याउनु होइन, सत्यता पृथ्वीवासीले जानुन् र सत्य स्वरूप एक परमेश्वरलाई चिनुन् र सत्य स्वरूपमा बाँच्न सम्पूर्ण जगतलाई स्वीकारुन् भन्ने हो। यहाँ म भनिएको छ, मको ठाउँमा परमेश्वर भन्ने बुझ्नुपर्छ। सत्साहेब। Sadgurudev ki jai. This enlightening knowledge come from only one God Father. This true knowledge make the righteous happy by showing them the true path, but the evildoers will be terrified of the path will be lost. Proverbs chapter number 21 verses number 15, Holy Bible chapter number 7 verses number 30, Holy Quran। सत्साहेब। यो प्रकाशमय ज्ञान एक गड र खुदा अल्लाह भगवानबाट आएको हो। यो सत्य ज्ञानले धर्मीजनलाई सत्य मार्ग देखाएर हर्षित बनाउँछ भने कुकर्मीहरू त्रसित भएर पथभ्रष्ट हुनेछन्। पवित्र बाइबल हितोपदेश 21:15, पवित्र कुरान अध्याय 7 आयत नम्बर 30। Praise be to Godfather Rampal Ji Maharaj Ji as a true master Kabir Dev. मेरो हूँ सृष्टि को सृष्टि रोए मोह है, गरीबदास इस वियोग को समझ सके न कोई। Here, the book of life or Kabir Vijak seed means to understand all the holy scripture related to Godfather Kabir Dev, because these holy scriptures are the seed of human life. We cry out for the realization of the Godfather. The Godfather weeps for us. Between us and Godfather is the owner of this world. Godfather can take all mankind home in a second, but Godfather does not. Because Godfather has given this world to him, the merciful Godfather will never take away what he has given. By our one will, we are sold to the Lord of this world. He has brought us with blood, that is, with 204 eras of hard penance. This is the calculation of time according to the 204 eras this world. There is no time limit whatsoever. We cannot return to our home by enduring the hardship of our strength, using force, wisdom, and discretion. There is no one other but the Godfather who only can bring us home, but so. Other will take away your precious time. We have turned away from the Godfather, but so, by using a little wisdom or more than necessary. This doesn't mean blindly believing, but looking at the Holy Scripture evidence. The objects of this world created by human intellect are not even 10% compared to heaven. Before Iron Age, there were no airplane or rocket like now, but they could easily go to earth to heaven and heaven to earth because human beings trusted and believed in the heavenly deities. So the deity were helpful. But now if you believe, your helper is the Creator himself, so. When Iron Age came and human started relying on this intellect and fight took over, then the gods and goddesses also stopped helping directly. In this way, mankind has felt powerful because of their intellect, but in reality, they are very weak. Because pride has increased and love has disappeared. So it is not good thing to trust in this evil heart. We should trust the command of the Godfather, which are the proven life. In this way, we can return to our home by simple action, at the behest of the Godfather till the last breath of life.
then all the work of our human life will be fulfilled. That command began only after initiation, baptism. If you are baptized a third time, receive Godfather name, but do not obey God's word. That baptism will not work either. This is the way of the word. Be very careful what you sow. In order to be successful in the path of devotion, one should monitor oneself, not others, but also God care for others. In this initiation, baptism is full meditation yoga. This meditation yoga is not one that is refreshed by sitting in a yoga training center for an hour, then being stressed again for 23 hours. This method of devotion can be easily performed no matter how busy you are. It covers everyone from the king to the people. This devotion method will work even while eating, sitting, walking, sleeping and dreaming, etc. There is no need to sit aside time for devotion. You will be able to advance in devotion by doing worldly work. Devotion will reduce your sin. When sin is over, you will see Godfather in this world life virtuoso. Suffering is due to sin. When sin ceases, there will be happiness and you will be able to stand before Godfather life. If you have more devotion, the Godfather will take you to visit around your home Satlok. You can meet Krishnaji, Jesusji, Muhammadji, Buddhaji and others deities as you wish. You will meet them and move on. But no one can bring you to meet the Godfather Kabir Dev except him himself, because no other devotional method can cross the 21 universe. When we move from this world to this upper world, then we do not want to return to this world, but also because you will see the real form of this world from above. This world looks like a garbage dump. We have houses inlaid with diamond and beryl, their virtues so. There is our body of indestructible gold, not a precious body of dust, but also the body from which the white light emanates, which is equal to 16 suns. That body is there an unconscious state. Precious human life should not be wasted. We must devotion should be complete and return our home. But also, Satan has a terrible snare of wealth, greed and glory in this world, but also it must be abandoned in order to receive the Godfather. For example, if your business is a butcher shop and you have brought your family from that business, but God has called that business a sin, you should leave that business without trusting your intellect. Once you believe in God's word, God will open another world for you. Once you believe in God's word, it will be something you have never thought of in your life. In this way, the Godfather was to take many virtuous souls on a journey to Satlok, for heaven. Let's look at the description of that indestructible place done by some virtuous soul. This description that will bring you strength, virtuous soul. Praise be to Godfather Rampalji Maharaj Ji as a true master Kabir Dev. नमस्कार जी। सत्साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। जब मैं भिवानी आश्रम में गई थी तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब, तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूँगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी, मेरे को एक सपना सा लगा वो, और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे और
और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे, तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे बहुत मोटा आम लग रहा था, तो मैं सोची तोड़ के खा लूँ। फिर मैंने नहीं खाया, मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था, कबीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया, तो गुरुजी ने मेरे को दिया। और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? हाँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती थी, उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। मैं जस्ट आई कॉलेज से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, लंबे नाखून और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरे मम्मी को बोली कि मम्मी एक आए थे एक संत, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेती थी, लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो उससे भी मैं भी नाम दीक्षा लूँगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो संत रामपाल, तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था। जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसी प्रकार मेरी आत्मा ने भी गवाही दिया, तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन का लोग जहाँ पर आए, वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था, वहाँ पर बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए परमात्मा, बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने
का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महाशिव रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था। मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काल निरंजन। तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना, तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखें। नर्क लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांधकर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूर्ण अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएँ थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो ख़राब होगा ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता ऐसा करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माताजी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे?
मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ था वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं, करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए। 12 अप्रैल सन 2018 में मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आँख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं। और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को। और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक, करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई। तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक हैं, अविनाशी लोक हैं। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा
संत रामपाल जी महाराज गुरुजी को, गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया, तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और उन्होंने मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते। तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ, भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया, तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। जी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था तब मैंने प्रथम मंत्र, पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी, मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाया करता था। लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी मेरा मन और ज़्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं कहा मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज़ होने लगी। मैं कहा अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज़ होगी कि महाराज जी, मैं प्रथम मंत्र कर रही थी तब माला कर रही थी, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज, सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहिब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया, मेरा भाई कहता क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं कहा मैं करती रही माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए, महाराज जी कह रहे कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा, खुद गुरुजी घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने दंडोतम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा, आपका तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने, मैं खुश होगी, मैं कहा ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी, फिर हम वहाँ से गायब करके, मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में ला के खड़ा कर दिया। मैं कही ये क्या महाराज जी, आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि मैं कहा फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाए ऐसे गायब करके। फिर मुझे रसोई में ले आए, कहते आप ये घर बेच रहे हो। मैं कहा हाँ। करे कितने का बेचोगे? मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं क्या क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं क्या ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर की साइड ईंट रखी हुई थी 2-3, उस पे गुरुजी ने पैर रखा, उस ईंट का रंग बदल गया, सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में, और पौड़ियाँ बन गई, बहुत लंबी पौड़ियाँ बन गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में, मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है। मैंने पहले पैर रखा, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे हटा लिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा,
उसमें जो मैंने वो चीज़ छुई थी, अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ, वो चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे, चलते गए, फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी, स्वर्ग में मुझे घुमाया महाराज जी। गुरुजी कहते स्वर्ग में घुमाया मुझे, फिर स्वर्ग में जब घूम रहे थे हम, महाराज जी को तो मुड़ने लग गए। मैं हैरान है कि मैं क्यों उड़ रहे हैं महाराज जी। फिर मैं कहा महाराज जी मैंने भी उड़ना है। महाराज जी कहते फिर आ कोशिश कर। मैं कोशिश बहुत देर तक कोशिश करी, लेकिन मैं उड़ नहीं पाई। फिर गुरुजी नीचे आए, गुरुजी कहते ला हाथ पकड़ा, मैं तुझे अब उड़ाता हूँ। फिर गुरुजी ने उड़ा दिया मुझे पूरी आसमान में हम उड़े। बादू स्वर्ग सारा देखा हमने, स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में, स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के नर्क देख के आते हैं। जब मैं नर्क में गई, मैं क्या महाराज जी मैं अंदर से नहीं देखूंगी, मैं ऊपर से देखूंगी कैसा हाल है नर्क में। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेना आप। जब मैंने ऊपर से देखा, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था नर्क में, बहुत बुरा हाल हुआ था। नर्क देख के मेरे होश खुल गए थे। मैं क्या मेरे पिताजी बताया करते थे नर्क में वैसे ही सब कुछ है ना, नर्क में इतनी बुरी तरह आत्माओं को मार रहे थे ना, बहुत बुरी तरह। मैं वो बातें अब सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं क्या गुरुजी ऐसे काल के जाल में हम आगे जावे, हमें नर्क में घुटना पड़ता है, काल हमें खाता है। गुरुजी कहते चल, गुरुजी को जब देखा आत्माओं ने, गुरुजी को कहते हैं बचाओ परमात्मा, बचा ले परमात्मा। पर परमात्मा वहाँ से घूम के स्वर्ग में दोबारा आ गए। गुरुजी कहते हैं मैं कैसे बताऊँ इन्हें। गुरुजी कहते हैं मैं रोना आता है जब इंडिया ऐसे चिल्लाते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाना वो नहीं खा रहे, फिर भी खिला रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। मैं कहा गुरुजी अब सतलोक कब लेके जाऊंगी आप मुझे। गुरुजी कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रात को 10 बजे चलेंगे। मैं क्या गुरुजी अभी क्या हो गया, कहते टाइम नहीं है बेटा, अब रात को 10 बजे चलेंगे। फिर मैं क्या गुरुजी ठीक है। फिर गुरुजी मुझे वापस घर ले आए। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बताया, मम्मी कहती कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली बात क्या है। फिर गुरुजी फिर रात को फिर आए दर्शन देने वास्ते। मैं बाहर वाले कमरे में सो रही थी, अंदर गुरुजी प्रकट हुए थे। फिर गुरुजी अंदर देख के आए थे सारा घर, कह रहे कहाँ सो। फिर मेरे को आवाज़ मारी कि कोयल उठ। फिर मैं उठी। गुरुजी कहते हैं बाहर की सो रही, अंदर सोना था। मैं कहा गुरुजी यहाँ पे वहाँ पे गर्मी लगती है, अंदर यहाँ पे ठीक है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, अंदर सोया करो, कूलर अंदर लगा लेना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते चलो अपन सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक गए, वैसी पौड़ियाँ बन गई, वैसा ही स्वर्ग देखा, वैसे ही हमने नरक देखा। इतनी जब हम काल को देखा था ना, काल को दिखाया महाराज जी ने, इतनी दूर खड़े थे, जितना हिसार से बठिंडा दूर है ना, इतनी दूर खड़े थे हम। फिर भी ऐसे लग रहा था जब हम बिल्कुल पास खड़े हो काल के। इतना बड़ा काल था, बहुत ही बड़ा काल था, जितना अपना फेस नहीं है उतना उसकी आँख ही आँख है। इतना बहुत बड़ा था, उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती वो कितना बड़ा था। जब हम उसके पास चलते गए वो बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा हो गया। फिर एकदम फिर गुरुजी उसके ऊपर से पैर रख के चल गए। फिर जब वो कालों से भूंज के आत्माओं को खा रहा था ना, तब गुरुजी को दिखा के खा रहा था। ये देखो मैं तेरी आत्मा को कैसे खा रहा हूँ। वो आत्मा सारी चिल्लाने लगी गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। परमात्मा वो रोने लगे उसके पर काल के सामने नहीं रोया महाराज जी ने। हम आगे गए तब महाराज जी रोने लगे, कहने मैं कैसे बचाऊँ इन सब को, क्या भक्ति करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। फिर महाराज जी कहते चलो पद सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक में गए। सतलोक में गुरुजी ने मुझे खेत, दूर से ही हमें खेत दिखाई देने लगे थे। मैं क्या गुरुजी वो क्या है। गुरुजी कहते वो खेत है। मैं क्या है खेत है। जब हम उसके खेत के पास गए तो उनका खेतों का कलर ही अलग था, जो कलर यहाँ पे है ही नहीं गया, ऐसे कलर थे वहाँ पे। फिर मैंने कहा उधर तितलियाँ थी, मैंने तितलियों के हाथ में जब पकड़ा ना तो हाथ खोल के देखा वो तितली गायब थी मेरे हाथ से। मैं कहा ये तितली कहाँ गई। फिर देखो ऊपर वो उड़ी जा रही, वो रंग बदल गई फिर से दोबारा। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया। गुरुजी कहते यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम और आगे गए। फिर वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, मानसरोवर देखा, हमारा खुद का घर देखा हमने। फिर मुझे महाराज जी ने अपना सिंहासन दिखाया, इतना बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा सिंहासन, उसमें भी हीरे मोती लगे हुए, पहाड़ों की साइड में भी हीरे मोती लगे हुए थे, घरों में भी हीरे मोती, इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
गुरुजी तो सिंहासन की तरफ जाने लगे। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहते मैं तो अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ। मैं कहा फिर मुझे सतलोक कौन दिखाएगा? फिर गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आपको सतलोक कोई ना कोई दिखा देगा, आप आगे जाके देख लेना। फिर गुरुजी जब सिंहासन की तरफ जा रहे थे, गुरुजी को मैंने दूर से देखा, वो जब सिंहासन पे बैठने लगे एकदम आसमान में उड़ गए। फिर उनकी जब वो उड़े तो उनका शरीर जब नीचे वापस आए तो उनका शरीर अलग था, उनका शरीर बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा हाँ ये कैसे शरीर महाराज जी का हो गया? मैंने पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा था। फिर मैं क्या मैं तो सतलोक घूमती। फिर मैं सतलोक जब देखने लगी, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या सतलोक में पहली बार आई, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मुझे ना जाते जाते रास्ते में मुझे आत्मा मिल गई एक। वो आत्मा में इतना रौनक थी, इतना प्रकाश था, बहुत ज़्यादा। उसका जो शरीर था वो अलग था, वो ना स्त्री थी ना पुरुष था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर वो कहते आप सतलोक में पहली बार आए हो? मैं कि हाँ मैं पहली बार आई हूँ। वो कहते चलो फिर आपको सतलोक दिखाएं। मैं कहा हाँ चलो। फिर हमने सतलोक पहले पैदल से ही देखा, पैदल में हमने घर देखे, मैंने खुद का घर देखा, घर में घर देखा, मानसरोवर देखा, सारा पैदल वाला देख लिया। फिर वो कहती चल वाहन में घूमने चलते हैं। मैं कहा वाहन में आप गिर गुड़ नहीं जाएंगे? वो कहती नहीं गिरते। मैं वाहन में पहले तो मैं बैठ गई, मैं गई, गुरुजी बैठे थे, कह रहे क्या हुआ सतलोक देख लिया? मैं कहा हाँ। अच्छा है? मैं कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर गुरुजी कहते चलो अब नीचे चलना है। मैं कहा नीचे कहाँ? क्या पृथ्वी में जाना है? मैं कहा मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी किसी भी हालत में। क्या जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा। वो कहते इंटरव्यू देना है आपको। मैं कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू मैं कभी और दे दूंगी, मैंने तो यहीं रहना है। फिर गुरुजी कहते भक्ति कौन करेगा? पिछली भक्ति से तू आ पाई है सतलोक। मैं कहा मैं माला सतलोक में ही ले आती हूँ, यही कर लूँगी मैं सिमरन। हो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं तू माला यहाँ लेके आएगी? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर सारी आत्माएं आ सकती हैं यहाँ पे माला लेके। फिर भी तो अगर तू माला लेके फिर भी आ भी गई तो फिर तू भक्ति कैसे करेगी? मैं क्या कर लूँगी मैं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते ऐसे कैसे भक्ति करेगी? तो पूरा दिन तो तू सतलोक में घूमती रहेगी, क्या तू भक्ति करेगी? भक्ति में तेरा मन ही नहीं लगा करेगा। मैं क्या हाँ। कहते देख ले अगर तूने भक्ति थोड़ी सी भी करी नहीं ना भक्ति, तो तुझे भी काल वैसी खाएगा जैसे उन आत्मा को खाता था। मैं क्या नहीं ऐसे थोड़ी ना खा लेगा मुझे। फिर वो कहा नहीं ऐसे खा सकता है, खाने में क्या गए। मैं क्या चलो ठीक है मैं नीचे चली जाती हूँ। जब मैं वापस महाराज जी फिर कह रहे चलो नीचे जाना है। फिर मैं कहा ठीक है मैं आ रही। फिर जब वो मैं जा रही थी नीचे आ रही थी वापस, तो मेरी जो फ्रेंड थी जो मिली थी मुझे आत्मा, वो कह रही थी अब कब आएगी? मैं क्या आऊँगी, पक्का आऊँगी, अब की बार मैं हमेशा के लिए आऊँगी। वो कहती अच्छा पक्का आना, फिर अब मैं यहाँ पर रोज़ घूमा करेंगे। मैं क्या हाँ। वो कहती पक्का आएगी ना? मैं क्या हाँ पक्का आऊँगी, 100% आऊँगी। फिर वो कहती अच्छा। फिर हम वापस नीचे आए। नीचे मैंने अपने मम्मा डैडी को बताया। मम्मा डैडी कहते ये क्या तू सतलोक घूम भी आई, हमें बताया भी नहीं। मैं क्या मम्मा ऐसी बात नहीं है, आप भी किसी दिन जाओगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नज़ारा कैसा था? क्या आपने देखा? क्या हो रहा था वहाँ पर? कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्माएं तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्माएं मतलब बहुत तेज़ से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसे जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, वो पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप क्यों रो रहे हो? परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो? और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आँखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख मेरी जीव आत्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरे को अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अभी जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी।
मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरु जी के, और गुरु जी में भी आ गए थे। फिर गुरु जी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे। और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरु जी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम। आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम। वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा, मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया। फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गए थे। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे। और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा। आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरु जी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरु जी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरु जी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था। मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी नाक वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके। बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो। और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका कि हे परमात्मा, वो मतलब पहले गुरु जी कैसे हो गया, और कहा कि गुरु जी पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा, कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि इसमें भक्ति पूरी थी, और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो। वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो आगे ठीक है जी। फिर गुरु जी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया, और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे, और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था, और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था, और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं उन शब्द उन जो मन कहना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरी सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरु जी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरु जी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे, मतलब इस टाइप में था। बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी, और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी, मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है, मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए, गुरु जी मतलब कबीर परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरु जी बैठ गए, मैंने फिर गुरु जी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरु जी के मैं आराम कर रहा हूँ, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, यहाँ घूम लूँ? ओके। फिर मेरा गुरु जी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे, मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत सुंदर था उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया, और मतलब कि कहने लगे कि तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है, तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी,
और चिदानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि रूम वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी, और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी के भी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है, और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइए। Sat Sahe. Praise be to Godfather Rampal Ji Maharaj Ji as a true master Kabir Dev. We are not experiencing even a small percentage of the love of the Godfather, the Bachcha. How much he suffered when we left our Godfather and came to this world. We are suffering here by our one will, but he fulfilled our wish by crying himself, Bachcha. Godfather could have stopped us, but he did not stop us because our soul was attracted to the Lord of this world. That is, we had become adulterous. The sin in the soul needed to be washed away and cleansed. We are now in the same fascination with the Godfather, but the Lord here has not easily let us go our home, has spread confusion. When the Godfather Jesus came to take his child, the Lord here also raised a lot of fake Jesus on earth. All these Bachcha who play in the name of God, who heal the sick, bring them from death to physical life, are the loved ones of God. These Bachcha are satisfied with the fruit of their own pre-existing karma because they have not got the right devotion. Now these Bachcha have helper ghosts who act according to his word and will. Their helper is not a God, Bachcha. This act of shaking, rumbling, falling of man is done by the Lord of this world. These, the judge of all, have become ghosts. The slave humbly requests all Bachcha soul accept the truth and fulfill the main duty of human birth. Bachcha soul, if someone is left in the hot sun in the desert, his desire is to get water. He can have no other desire there. This is a well planned to prevent the creature from returning to their homes, Bachcha. If you have a physical problem, come to Godfather with that problem. You need it because devotion needs a healthy body, otherwise you cannot do devotion. But you don't pay attention to the need of the body. You pay attention to the needs of the soul, even why not the slightest pain, because you are forever out of the cycle of birth and death. This is not normal things, Bachcha. The Holy Scriptures do the work of separating the true from the false, Bachcha. Let's learn the Jesus, the Godfather's quality and action according to Holy Scripture. The Father is omniscient, that is, He reveals the secret of all the Holy Scripture. That means confirm the information from the beginning to the end of creation according to the Holy Scripture. He is the Godfather who strengthens in knowledge and anoints with the word of truth. He became His one Son and revealed one name, Father's name. Godfather Himself became the teacher and Himself became the saint. That is, Godfather Himself became the Son, the teacher of the world, and He Himself played the role of the Holy Spirit. Godfathers can be seen not only in the three worlds, but in all mankind in the world at the same time in the same shape and in different shapes. But also, who doubts it, he does not have faith.
If God can create a human race from one man being to inhabit the earth, then he himself cannot be present in three forms. The unbeliever make him a liar, but if you have believed, he is precious. The Godfather brings the dead back to life. This means of life is both physical and spiritual life. God's word is to his. The Godfather must have all three names. He does no harm to any creature. He is merciful but protects his devotee. Godfather gives complete information about the owner of this world. Only the Father will know the time of the end of all the laws. At that time the earth will be transformed, which has been presented in the previous video on the secret of the 7 leather letters unveiled. He brought food from Satlok to 18 million people and fed them and gave them clothes. He is the Godfather. He is the Godfather who does not use the womb of woman to come into this world. He is the Godfather who breathes through the nose and gives the Holy Spirit. He is the Godfather who saved from the illness of birth and death. He is the Godfather who preached the gospel of salvation to the world. He is the Godfather who has the same view of all creatures. He is the Godfather who unites all mankind. He is the Godfather who does not fast. He advised his people not to fast. First, Jesus, Rampalji Maharaj was in Hinduism, then came to the path of God, Kabir Panthi. This slave also converted from Hinduism to Christianity, then Godfather called to the path of God, Kabir Panthi, the word of God. It is necessary to make it clear that the word of the Holy Scripture is fulfilled on both sides, but also man-made religion does not benefit us at all. The main reason we are divided in religion is to receive Godfather. Now that Godfather himself has come, what does it mean to be divided? The main reason for the terror of the earth is man-made religion. When this man-made religion ends, then the earth will be like heaven. So, in the parable of Jesus' genealogy in the Holy Bible, Godfather blessed Dharmadas ji 600 years ago with the lineage of 42 generations and gave the type and name of the lineage. They are as follows. All the 22 revered Jesus who have come to earth so far have come from the same place, Punjab province. The area of Punjab province at that time was large, but today it is divided into pieces. And this is the lineage of the world, the lineage that God has brought to this day, that is, till the appointed time. Godfather gave his life to one of mankind and waited for the right time. He did not let life end. According to the serial number, he is the 22 Jesus. According to the book of life, he is the 13th Jesus, and the last coming is the 14th Jesus. Now the 15th of the body and the 21st lineage of the world are running. Prakash Muni Nam Sahib is on the side of the body, and Rampalji Maharaj Ji, the Godfather himself, on the side of the world. But the Father has hidden his form from the devil. The devil cannot recognize the Father, but so, according to the lineage of the body, at the end of the last 42 lineage, come the Godfather who is the 14th Jesus. The first, 13th and 14th is the time of Jesus preaching to the end of the earth. But so it is time for many creatures to return home. The lineage of the flesh also must be humbled to enter into the lineage of the world for the salvation, because for the salvation of God is in the lineage of the world, not the lineage of body.
Apart from the devotion of Godfather, other devotion rituals are bound. That is, one cannot return home, which is the same as poison. You are sensual, angry, don't worry. This baptism will diminish that quality of yours because your really second test will be the soul after leaving the body. If this quality of yours is not lost in the body, then you cannot pass the second test because there is a place in heaven, fifth door, where billion naked beautiful boys and girls are kept. Going there, the soul has a relationship and the soul goes through a cycle of rebirth and death. Therefore, in order to pass that test, you need to have decreased all three qualities in this world, which is done by baptism. Only those who are baptized will know the sacred name. For the education of mankind, body has been sacrificed by many saints, including Jesus. Don't let this contribution go to waste, but also we are made of passible elements, so we are attracted to passible things. But also, so we need this powerful baptism to get us out of passible things. Now you know the Godfather. Give him the glory he deserves. From the end of the earth, all creation sing his glory. What stopped you? जो जन मेरी शरण है ताको हूँ मैं दास गल गल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश. Godfather grace has been revealed for the salvation of mankind. Internal punishment and internal life both are before mankind. Choose as you wish. There is no other choice but so. Blessed are those who hear, see and understand this true knowledge. You are in the light, the place to go is shown. Let no one be deceived. This teaching is from Godfather but so. Sat Sahib. Praise be to Godfather Rampal Ji Maharaj Ji as a true master Kabir Dev. If there is no Nam Diksha Baptism Initiation Center in your country, contact us, Online Service Nepal. Godfather invite all mankind to come and drink the water of life.